sending side, ठीक है, and you have a receiving side. So the network in which two ports are available, and between these two ports there are the circuit elements present. Then this kind of network is called two-port network. So two-port network is actually a four terminal based element. टू पोर्ट नेटवर्क को अगर मैं इस पूरे सर्किट का ये कंप्रेस कर दूं, ठीक है, और इसको एक नाम दे दूं ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक की लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्मिनल्स होंगे और राइट साइड दिस फोर टर्मिनल बॉक्स इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क. वन पोर्ट फॉर द सेंडिंग साइड, वन पोर्ट फॉर द रिसीविंग साइड. So the two-port network have basically four kinds of variables: sending end voltage V1, sending end current I1, receiving end voltage V2, receiving end current I2. बीच में जो भी आपका मैश बन रहा है वो रेजिस्टर्स का या इंडक्टर्स का या कैपेसिटर्स का जो भी है वो आपके अलग सर्किटरी बन रही है. यानी इस सर्किट को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ. Can you reduce this circuit? Yes. Obviously, you can do that by CDR or by VDR or by mesh analysis, whatever the way you want, or maybe by using series parallel combination. You can reduce. If the network, which is able to be, which can be easily converted in the form of like that, V1, I1, then the circuit I2 and V2. Then this whole setup becomes two-port network. तो आज का टारगेट क्या है? आपने इस टू पोर्ट नेटवर्क में अभी जो इन बिटवीन जो भी सर्किटरी आपकी है इसमें चार पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं A, B, C and D. These four parameters are called ABCD parameters. So once you know these ABCD parameters, can you find out if source voltage and source current is available, provided that ABCD parameters are also given to you? Can you find out V2 and I2? ठीक है ना. तो आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी. तो दो इक्वेशंस जो बनेंगी वो इस तरीके से होंगी. देयर इज V1 सेंडिंग साइड विच इज इक्वल्स टू AV2 प्लस B negative of I2. Similarly, another equation for the source current is there. So if you know these A, B, C, D values, you can find out the other two variables, I2 and V2. But do you think can you do this in this setup? Obviously you can't, because there are actually four variables. So four variables, but you're having two equations. So in order to solve that, this kind of network, two-port network, first you need to analyze or find the values for A, B, C, D. तो A, B, C, D पता होंगे तो आप बाकी के parameters find out कर सकते हो. तो how do you find out A, B, C, D parameters? For example, this is your given sample, given circuit. And V1 is known. For example, 5 volts. V1 कितना रख लो आप? 5 volts DC supply. एमीटर लगा लो इधर. पहले तो आपने क्या किया, रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन ब्रेडबोर्ड पे ये बना ली. ठीक है, ब्रेडबोर्ड पे आप ये सर्किट बना लोगे इजीली. एमीटर सीरीज में यहाँ कनेक्ट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1. वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, ऑब्वियसली यू आर यूजिंग द DC सोर्स 5 volts विच इज़ नोन वैल्यू. ठीक है. Now, in order to find V2 and I2, you have two cases. First case is, first you are going to do that you are going to open this terminal. क्या कर दो, इस टर्मिनल को ओपन रहने दो. So because of that, do you think I2 will flow in the circuit? Obviously the circuit is open, so this branch current I2 will be nullified, will have zero value. ठीक है जी. जब आप ये ज़ीरो वैल्यू यहाँ पुट करोगे और यहाँ पुट करोगे तो व्हाट डू यू थिंक कौन से एलिमेंट्स हैं जो एलिमिनेट हो जाएंगे? B and D. B and D will be eliminated. A and C will be there. So obviously चार वेरिएबल्स थे, तो चार वेरिएबल्स अब किस में रिड्यूस हो गए? दो वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस. यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. You know V1, you know I1, and V2 can be measured through voltmeter by connecting voltmeter at the receiving end. So this is case number 1, in which you have opened the V2 terminal and you have used this open circuit scenario to find out the two parameters which are A and C. Now in the second case, what you're going to do, you are going to short the same terminals. You're going to short the terminal V2 वाला. ठीक है. So what will happen now? शॉर्ट होगा तो I2 करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज पाथ इज नाउ अवेलेबल.
V2 पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? शॉर्ट सर्किट, जब भी हम बोलते हैं दो टर्मिनल शॉर्ट कर दो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या डेफिनेशन होती है? द वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल विल बिकम बेसिकली दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, they both become at the same potential, so the potential difference will drop to 0. So obviously V2 will be 0 as read by the voltmeter. चेक भी कर लो, वोल्टमीटर पे V2 जो है वो क्या हो जाएगा? 0. अगेन एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया. अब इस V2 पे जब हम V2 यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे? A और C. Exactly. So now you can find out B and D through this condition. You can measure I2 by ammeter. You know the value of V1, you know the I1 through ammeter. So you can solve for B and D. So jab B and D, for example, after doing both these scenarios, after implementing these two cases, now you know AB, now you also know CD. If the condition now occurs कि अब आपको, अब मैं आपको बोलूँ I2 V2 find out कर लो, you know the parameters A B C D, so now you can do, instead of doing mesh analysis and all the maths, laborious maths required for this kind of circuit, या अगर circuit expand भी मैं कर दूँ, इसमें 2-3 और branches add कर दूँ, circuit बड़ा हो जाएगा, तो multiple times आपको KVL KCL लगाने पड़ेंगे. Instead of doing that, you can use a compact version of the circuit, which is ABCD parameters. So once you know the ABCD parameters of the circuit, you can easily find out the other unknown variables. So this is the target for today. Go for case number 1, find out the value AC. Go for case number 2, find out the value BD. ठीक है जी. अब आपका टास्क दूसरा क्या है, जो आपको मैं नेक्स्ट लैब में जब आप आओगे तो क्या करके लेके आओगे, ये तो आज आप परफॉर्म कर लोगे अपने अपने स्टेशंस पे जाके. ठीक है, मुझे वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर ये वैल्यूज़ आनी चाहिए. ठीक है, स्नैप ले लेना इसका, क्योंकि चाहो तो स्नैप ले लो इसका. स्नैप पे क्लिक करके ना स्नैप ले लो. ये वीडियो होगी. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका इसमें क्या करना है, अब आपने, मैं आपको टारगेट दूँ मैथ्स, इसका सारा आप करो. तो फर्स्ट मैथ्स क्या होगा? पहली कंडीशन हमने कौन सी की थी? ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में यू नो V1 5 वोल्ट्स. I1 के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. I1 के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला V1 ओवर द सीरीज एंड पैरेलल. क्या होगा? आपने करा क्या है? ओपन सर्किट कर दिया. जब ये सर्किट ओपन होगा तो I2 हमें पता है इट्स 0. यू नो ऑलरेडी I2 is 0. You can going in the reverse direction, you can reduce the circuit. कैसे करोगे? अगर ये 100 ohms है और ये 1.2 K है, ये दोनों क्या है? सीरीज में है. वैल्यूज नोट कर लो, मैं वैल्यूज बता देती हूँ. R1 की वैल्यू है 1K. R1 is 1K. R2 is 100 ohm. R3 is 1K. 1K, 100 ohm, 1K, R4 1.2, R5 1.2K. ठीक है, अब मैं जो आपको कह रही हूँ ना, आप मैथ्स अप्लाई करो. तो फर्स्ट कंडीशन पे जब आप मैथ्स अप्लाई करते हो ओपन सर्किट में, तो ये तो V2 तो 0 हो रहा है, ऐसा ही है ना? V2 कह रही है, I2 0 हो रहा है. तो यहाँ पर तो आप ये ब्रांच जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी. बचेगा क्या? ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे. सीरीज में ये दोनों सीरीज होने के बाद इसके साथ क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे. इसके साथ क्या हो जाएंगे? I1 फाइंड आउट कर लोगे? ठीक है, जब I1 फाइंड आउट कर लोगे तो V2 कैसे फाइंड आउट करोगे? वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल. यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं कर रहा है, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम होगा. एग्जैक्टली. ठीक है, तो ये आप V2 फाइंड आउट कर लोगे. I1 के लिए ये फॉर्मूला लगा लो. अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास, अगर इस करंट को मैं बोलती हूँ दिस इज I1 डैश, तो V2 फाइंड आउट करने के लिए करंट थ्रू दिस ब्रांच एंड द रेजिस्टिव वैल्यू, ऐसे ही है. तो आप इस ब्रांच के करंट को कैसे फाइंड आउट करोगे? वही बैकवर्ड जाना है. क्या होगा? VDR लगाओगे. एग्जैक्टली. तो 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 इन सीरीज विद 100, एंड इन दोनों को सीरीज में करके इसके साथ पैरेलल में करके इसका वोल्टेज हो जाएगा. फिर ड्रॉप कर दोगे नोडल के साथ, इसका आ जाएगा. नाउ यू कैन फाइंड आउट द I1 डैश वैल्यू एंड यू कैन अप्लाई द सेम वैल्यू ओवर हियर.
शॉर्ट सर्किट जब आप कर रहे होगे ये दो टर्मिनल से शॉर्ट हो जाएंगे आई, ठीक है। अब आपको I2 पता है, I2 कैसे फाइंड आउट करोगे? ऑब्वियसली जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये सर्किट बन जाएगा, ऐसे ही है। Yes. जब ये सर्किट बन जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? Parallel. ये दोनों जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों आपस में Parallel. पैरेलल हो जाएंगे। तो सर्किट को रिड्यूस करके आप I1 फाइंड आउट कर लेना। I1 फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर आप जो है वो I2 फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर आगे फॉरवर्ड एनालिसिस करके एंड ऑल दैट। कहने का मकसद क्या है कि मैथमेटिकली आप अननोन वेरिएबल इस केस में और इस केस में फाइंड आउट करके BD यहाँ से फाइंड आउट कर लो, AC यहाँ से फाइंड आउट कर लो, और फिर इन वैल्यूज़ को जो है वो आप क्या कर लो, क्रॉस चेक कर लीजिए। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू एट होम व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट लैब, ठीक है। सो यू कैन नाउ गो बैक टू योर स्टेशंस एंड स्टार्ट